Very good afternoon, everyone. We'll start with this discussion on this MCA CET 22 paper. Okay. आज basically we will understand the syllabus, the content, the pattern, the expected cutoff, the strategies of appearing for an exam. Okay. And expectedly there are certain confusion also, वो हम लोग discuss करेंगे, possibilities निकालेंगे. एक मैंने deep research किया है इस केस को, इस पूरे एग्जाम को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड व्हाई ऑफ कोर्स दिस फील्ड इज बिकम सो इम्पोर्टेंट, दैट विल आल्सो वी विल अंडरस्टैंड. इनिशियली पहले मैं डिस्कस करूंगा और वॉट एवर योर क्वेरीज विल बी देयर यू कैन आस्क मी, और इन चैट बॉक्स आल्सो फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन वाले आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्टली. पहले मुझसे जरा मैं डिस्कस कर लेता हूं पूरा, एंड देन यू विल स्टार्ट आस्किंग मी. ओके, सो बेसिकली जो रोड मैप है आज के सेशन का वो ऐसा है कि विल स्टार्ट फ्रॉम MCA CET 22 के बारे में. देन वी विल डिस्कस द सिलेबस, द कंटेंट, द सिलेबस एंड द मेजर कंफ्यूजन सेक्शन. जो है कंफ्यूजन मतलब जो बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है, क्लियर नहीं है चीजें. इसके बाद आई विल टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस, अनडाउटेबली एट द लास्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लान. आगे आपको आने वाले जितने भी और 30-40 डेज जो हैं उसमें प्रिपरेशन अब कैसे करना है, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस. ओके, आई वुड सजेस्ट एवरीवन दैट यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स, यू कैन अंडरस्टैंड एंड आस्क. ठीक है, बट आफ्टर माय वंस आई कंप्लीट यू कैन आस्क क्वेरीज आफ्टर दैट, बट इन बिटवीन आल्सो इफ यू फाइंड एनीथिंग यू कैन डिस्कस मी इफ एट ऑल दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी. अदरवाइज प्लीज ट्राई कि लास्ट में ही आप अपने क्वेरीज मुझसे पूछें. तो चलिए शुरू करते हैं. MCA CET, this is the basic thing. You all already know this, that Maharashtra is one of the major education hub and across country, and the CET exam is one of the very very popular in the state. And why it is popular? Because across the country people are sitting here and then appearing for multiple CETs. And this time surprisingly MCA CET has also become one of the very crucial and important exams. MCA CET is for Maharashtra colleges, whatever the colleges which are coming. These are the deadlines and dates that we can see here. And the exam is expected on 4th and 5th. Only I think hardly 20 odd days is left with us for finally. That's why this countdown is basically being to be discussed, that what need to be done in next 20-25 days and how we can actually boost your score. Basically how आप अपना time utilize कर सकते हैं, that we will be discussing. Okay. Now, before we will proceed, let me tell you why you have chosen a wise career and why you should actually think on it, that we not only consider this as an exam but our career aspect. Reason is very simple. We are living in a world of data where since 2010 the things has been changed dynamically. Okay, so generally MCA being SB has been conducted for a computer related fields, means IT related fields. So this is just an opportunity for you people, those who haven't gone for an engineering through in their graduation. So you can actually enter into a field of computers by giving this exam and going for this 2-3 years long journey of MCA. Okay. Most important thing is why MCA and why this career is becoming more phenomenal. Because the world is actually needed the kind of data representation across the world, and that's why they need pool of people, the talented pool of people, those who are having a good understanding on analytics, but understanding on computer applications, basic computer aspects. So generally it seems to be that ज्यादातर computer application understanding जो है BE computers, BE IT के पास रहता है. But now slowly companies are realizing that MCA में ज्यादा अच्छा pool of crowd आ रहा है, and ज्यादा talented pool of crowd आ रहा है. इसलिए MCA CET nowadays is becoming more attraction to many of the countries, and मतलब countries के candidate में. I'm not talking about only Maharashtra. There are multiple MCA CETs, there are multiple MCA exams across the countries being conducted, और उन सब में responses बहुत ज्यादा है. Let me tell you the reports of placement in IT world. एक समय था जब MCA में hardly any recruitments होते थे, but अब ये compulsory हो गया है कि they are getting a good placement
good handsome salary, and there are some topmost colleges वहां से आप कर सकते हैं. And this is a phenomenal career because we are living in certain era where your knowledge towards your complete computer and understanding towards your computer will going to matter a lot. So I would say this is a phenomenal career. You need to really, why I'm discussing this, although you already joined it, already you are basically doing these courses from last so many years. But why I'm discussing now? Because of the simple reason that you should start pushing yourself to reach to a top college. I don't want you to just join any college just for the sake of a degree. We just want you to prepare yourself in such a way that you should compulsory upgrade your skills in such a manner that you can reach to a top college. And I'm assuring you, if you will follow certain things which I will be discussing during this session, I'm assuring you it will definitely going to boost your score, and as well as can land up in some really good colleges which are very reputed across the country. Okay, they are reputed across the country. It's not only reputed only in Maharashtra. I'm telling you, they are reputed in across country, and they are doing phenomenal job in terms of that. One more reason why industry is preferring MCA over BE is basically because of the consistency, the track record that the MCA candidates are showing. The problem that IT industry faces is the retention. They have a huge amount of coolage every year leaving. So if you are doing from BCA to MCA, that means you are more certain, more fixed in terms of you're more committed in terms of your jobs. Otherwise, you can see the engineers ka jo commitments hai towards the job is very low. That is why industry is now preferring, and jo packages mil rahe hain, that is matching to some top NITs. NITs ke jo packages hai, I'm not comparing with IITs, of course they are far ahead, but some top NITs के packages के बराबर आपको packages मिलता है. तो ये एक अच्छा बात है. इस बात को लेके पुश करिए अपने आप को कि at any point of time मुझे अपना preparation ऐसा रखना है कि I can reach to that level by. So this is an exam pattern. Basically, we all know this. There are some confusions I will be sharing with this. Total 90 minutes का paper है, only 1.5 hours. You know this, 100 questions, 90 minute 100 question. One question carry 2 marks, that means 200. And I have cut this particular 0.5 negative marking because this was the first surprise on this notification. I will be showing the notification in the next slide, that they have mentioned the cutoff, that they have mentioned that there will be no negative marking. This is first time ever this is happening in MCA CET जब से ये start हुआ है, because negative marking is a common trend. They don't want they don't want you to rush in an exam. The exam called MCA CET used to be a very sophisticated particular exam in terms of appearing a question. That means they want you to choose a good question rather than attempt all the question. That was the trend, but now they are breaking that trend. So what it means, what exactly is going to happen, that I will going to discuss in the next coming slide. But one thing I would like to point out here is there are surprises in the past also. One thing which you will never going to miss, और एक चीज जिससे आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, वो होगा आपका concentration towards whenever you are appearing for an exam. It is highly recommended. मैं आगे भी ये statement बोलूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ, it is highly recommended. Before reading the instruction carefully, don't start your test. There is a possibility that there may be a negative mark. आप उस समय लड़ नहीं सकते, बाद में लड़ाई होगी तो बाद में देखेंगे, उस समय तो एग्जाम देना है, ठीक है. They have all the rights to change anything, but 99% चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग हम नहीं करें. अगर 1% चांस है तो आपको उस 1% को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. पता कैसे चलेगा? You just need to see the instruction. Read instruction is a first most important tip from my side. बिल्कुल भी. और ये इंस्ट्रक्शन केवल आपके एग्जाम शुरू होने के नहीं है, एग्जाम में भी हर प्रकार के क्वेश्चनों में इंस्ट्रक्शन पढ़े बगैर मत करो. आपको बस यहीं पर बस रोल आउट किया जाता है, आपका रीडिंग कैसा, आप पढ़ कैसे रहे हो एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा. इसलिए इंस्ट्रक्शन हर लेवल पे पढ़ना जरूरी है. भले ही आप 2 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ के बिल्कुल करो. पेशेंस रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पेशेंस रखना है.
In the next coming slides, I will be sharing multiple things. So what are the confusions in this MCA CET this time? I am pointing out certain. Some I can answer, some I may not be able to answer because I also don't know. Nobody knows. Basically, जो जिन्होंने पेपर निकाला शायद उन्हीं को पता होगा. So what are the confusions basically? पहला है negative marking को लेके. This is pretty clear that they have mentioned it that negative marking is not there. That means the maximum chances will be there. There is no negative mark. So आप प्रिपेयर वैसे ही करिए, आपको मॉक्स जो हमारे मिलेंगे वो विदाउट नेगेटिव मार्किंग ही मिलेंगे. ये बात बिल्कुल क्लियर है. ठीक है. सेकंड जो कंफ्यूजन है जिसका आंसर शायद मैं नहीं दे पाऊंगा और वो है सेक्शन वाइज. इफ यू विल आस्क मी, पेपर आपका सेक्शन वाइज होना चाहिए. बिफोर 21 द पेपर यूज्ड टू बी सेक्शन वाइज. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन वाइज? ऑल 4 सेक्शन इज क्लियरली डिफाइंड. क्वांट, रीजनिंग जैसे आपको विकल्प के ऐप में दिखता है, अलग अलग सेक्शंस में डिफाइन है क्वेश्चन. लास्ट ईयर देयर वाज अ सरप्राइज एंड nobody was expecting this. There were so many discussion going on that कि इन्होंने TCS को देते थे, वो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए ये grudges हो गए, ये प्रॉब्लम हो गए. Nobody knows why they have done this. If you will ask me, I would absolutely say this कि section wise ही होगा. दुनिया का जितना भी एग्जाम है, बड़े से बड़ा एग्जाम कैट ले लो या और कोई जीमेट ले लो, वो सेक्शन वाइज ही चलते. कोई पेपर जम्बल्ड नहीं होता बिकॉज यू हैव टू कम विद अ स्ट्रेटेजी. इट्स लाइक मैंने प्रिपरेशन किया है जिस चीज के लिए, आपने जो बताया उसके अपोजिट आप मुझे जाके करवा रहे, वो गलत होता है. दैट इज नॉट राइट. एक्चुअली सरप्राइजेस होना चाहिए. क्वेश्चंस में सरप्राइजेस हो सकते हैं और कोई चीजों में हो सकते हैं, बट ऐसा सरप्राइज बिल्कुल गलत है. बट यू डोंट नो, वी डोंट नो एनीथिंग. नाउ पता कैसे चलेगा? तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 और 5 के पहले आई थिंक 1 या 2 तारीख को भी कुछ एग्जाम्स है, 2 या 3 तारीख को दूसरे एग्जाम्स. अनफॉर्चुनेटली एमसीए का एग्जाम पहले हो रहा है. जनरली एमबीए पहले होता था, अभी एमसीए हो रहा है. एमबीए का एग्जाम काफी लेट. सो अगर वो एग्जाम में सेक्शन वाइज नहीं आया तो लगभग तय है आपका भी सेक्शन वाइज, और अगर उनका सेक्शन वाइज आ गया तो आपका भी सेक्शन वाइज आएगा, लगभग तय. दोनों ही सिचुएशन में वंस अगेन हमें करना क्या है? प्रिपरेशन करना है दोनों के अकॉर्डिंग. आई एम वर्किंग आउट कि आपको कुछ मॉक्स जम्बल्ड मिल सकते और कुछ मॉक्स, मैक्सिमम मॉक्स आपको सेक्शन वाइज दिए जा सकते. बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर वो वर्क हो पाया, कंबाइंड हो पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? बेस्ट थिंग उसमें आप अपने आप के क्वेश्चंस को उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है. सो मेनली यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक पॉइंट हियर इज सेक्शन वाइज के लिए अपन अभी तैयार, मतलब आपका क्या होने वाला है नोबडी नो, हमको कुछ पता नहीं है. इसलिए वी विल वेट टिल द एग्जाम गेट ओवर. एग्जाम जब तक होता है तब तक. ठीक है. थर्ड बड़ा कंफ्यूजन है sectional cutoff versus overall cutoff. So CET is a traditional exam which happens only for an overall scaling. CET, any type of CET you can take it. We are preparing for law, management, hotel management, MBA, MC. All CETs, in fact JEE, NEET, all, they don't have any sectional cutoff. There are exams like CAT, MBA के लिए होता है, उनका sectional cutoff होता है. Now what does it mean? This means you have to perform in every section. If you are not performing in every section, that means you may not be get called, although your overall score is very. But यहाँ ऐसा नहीं. There will be a overall cutoff. What does it mean? This means I can actually completely destroy some section और कुछ sections के मैं कुछ question छोड़ सकता हूँ. What will going to matter? My overall score. It will not going to matter कि मेरा कंप्यूटर में कितना आया, मेरा रीजनिंग में कितना आया, मेरा मैथ्स में कितना आया. तो ये एडवांटेज है. आई कैन प्ले विथ माई स्ट्रेंथ. सम ऑफ यू माइट हैव अ गुड कंप्यूटर अवेयरनेस, बट हो सकता है कि मैथ्स में प्रॉब्लम हो, या किसी का मैथ्स अच्छा हो सकता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो. तो यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग एज पर योर कन्वीनियंट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान. ठीक है. एंड फाइनली न्यू पैटर्न, न्यू कट ऑफ. आई विल बी शेयरिंग विथ यू माई प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग. जो मेरा केस, मेरा अंडरस्टैंडिंग है इन 2-3 सालों में मैंने जो निकाला है, और टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो यस डेफिनेटली, बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है कट ऑफ बढ़ेगा. तो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उससे ज्यादा कट ऑफ होगा. बट कितना ज्यादा होगा वो हम लोग एक टेंटेटिव डिस्कशन पे रखने वाले हैं, उसको करेंगे. व्हाई डू वी नीड अ कट ऑफ, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं. बिकॉज वी नीड टू प्लान. See, this session is purely for a planning, your understanding, your strategy.
You have to make a plan that I have to reach to this level. If I'm not reaching to this level, that means मुझे या तो थोड़ा रश करना पड़ेगा, थोड़ा भागना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करते हो आप, तो आपको ये मान के चलिए कि ये डिफिकल्ट पॉइंट होने वाला है। इसलिए पैटर्न बदलने से कट ऑफ जरूर बदलेगा। पैटर्न क्या बदला है? ओनली नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो ये कंफ्यूजन्स हैं, इसमें से मैंने आपको 2 आंसर्स कर दिए, 3 आंसर्स कर दिए सेक्शन वाइज का। आई थिंक वी विल कम टू नो ओनली व्हेन यू विल अपीयर फॉर द पेपर। अब क्या करना है? व्हाट इज नेक्स्ट नाउ फॉर दिस कंफ्यूजन? मैं आपको पहले ही इसका सॉल्यूशन दे चुका हूं। कंपल्सरी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आप पहले ही सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिए। डोंट कंसिडर दैट कि ये कुछ बहुत बड़ा अचंबा होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ इसमें निकल के आने वाला है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे लिए अल्टीमेट थिंग। कोई स्पेक्यूलेशन किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना है। आपको कोई मेल नहीं करना है, डीटी वगैरह में कुछ नहीं करना, बस प्रिपेयर करो। अगर आपने प्रिपरेशन प्रॉपर किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट अभी नाउ आपको बस यही करना है कि आपके मॉक्स अपियर करना है, प्रिपरेशन करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग जो स्पेक्यूलेशन को, उसको छोड़िए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। दिस वाज बीन एक्चुअली टेकन इट फ्रॉम द नोटिफिकेशन। इट्स इसलिए मैंने उसको वहां से कट किया है। इसके कट करने के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाती है, ये सेक्शन वाइज अपने पास अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स, लॉजिकल, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ठीक है। हियर दे हैव मेंशन इट विल बी अ 4 ऑप्शन क्वेश्चन। तो ये एक एडवांटेज है। एमबीए वाली सीटी में 5 ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर ये क्लियरली मेंशन किया होगा। दिस मीन्स इन फर्स्ट पार्ट we will be actually appearing those question which are हमें बनते हैं, और आखिरी के कुछ मिनट में हमको बाकी क्वेश्चन को मार्क करना है। स्ट्रेटेजी यहां बदल जाएगी। मतलब ये है कि इनका जो 100 मार्क्स हैं, 100 की 100 क्वेश्चन आपके मार्क होने चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वो चीज बदल के आपको केवल उतने ही क्वेश्चन करना है। मतलब सीधा सा बात है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आखिरी का 5 मिनट का स्ट्रेटेजी चेंज होने वाला है। तो लास्ट 5 मिनट अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको छोड़ देना है और मार्क करके आना है बाकी सारे क्वेश्चन। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 5 मिनट के भी आपको यूटिलाइज करना है कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मार्क फॉर रिव्यू अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आप देखिए, सेव एंड नेक्स्ट का बटन ही दबाएंगे। बिल्कुल गलती मत करना कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेव एंड नेक्स्ट सेव, इसलिए मॉक बैठो, ठीक है। मॉक में बैठोगे, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। उसमें आपका जो सेव एंड नेक्स्ट होगा, राइट हैंड साइड के स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन आप देख लो। इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा ग्रीन वाला, रेड वाला का मतलब क्या हुआ। वो गलती बिल्कुल मत करिएगा कि मैंने तो मार्क ही नहीं कर पाई या मेरे 10 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू पे चले। वो अगर आपने मिस्टेक किया तो उसमें मैं कुछ भी बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। इसलिए हम आपको क्लियरली ये सब बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। इससे एक बात क्लियर हो जाती है क्या, कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो उतना हाई नहीं होगा जितना हाई हम सोच सकते। बट फिर भी एज कंपेयर टू, अगर मैं एमबीए सीटी से कंपेयर करूं, 150 मिनट आपको अटेम्प्ट करने पड़े, मतलब उसका डिफिकल्टी लेवल और भी इजी है, ठीक है। 200 क्वेश्चन 150 मिनट में, मतलब आपके लिए टाइम बहुत ज्यादा है आपके पास, राइट। तो टाइम बहुत ही कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। बट यहाँ पर 90 मिनट में 100 का क्वेश्चन। देखिए, जब अगर टाइम कम हो और क्वेश्चन ज्यादा हो तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम आता है। अगर टाइम ज्यादा और क्वेश्चंस कम हो, लाइक कैट एग्जाम में यू विल फाइंड मोर टाइम एंड लेस क्वेश्चन, तो यू विल फाइंड डिफिकल्टी लेवल इज हायर। तो ये आपको उल्टा है यहाँ, तो इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा, ये समझना है। ऑनलाइन है, इंग्लिश में देना, ये कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। ये आई एम रियली एक्सपेक्टिंग दैट कि आप कंपल्सरी इस बात को समझेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, ये चाहे तो आप लिख के अपने आगे वाले मॉक्स में इस्तेमाल करेंगे, या जो मॉक्स आपने अभी तक नहीं किया। मैं इन डिटेल आपको सारे टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्लान। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका पेपर जंबल्ड रहा
तो आपका प्लानिंग थोड़ा बिगड़ सकता है। अगर पेपर सेक्शन वाइज रहा तो ये प्लानिंग परफेक्ट चलेगी, बट स्टिल वी हैव टू ट्रस्ट कि देयर इंटरनेट स्पीड इज गुड। सो आई बिलीव आप बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं क्वेश्चनों में, अगर पेपर जम्बल्ड भी रहा तो। नाउ सबसे पहला स्ट्रेटेजी आपको बनाना होगा कि विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट और विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट। एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, so it is highly recommended that the section which requires less time, you need to start with that section first. Generally, I can say your stronger area need to be first. Yes, तो stronger area जरूर पहले होता है, but वो depend कर रहा है कि एग्जाम में कैसा चल रहा है। अगर नेगेटिव मार्किंग है, start with strong area. But अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, start with the section which requires less time. So for example, computer concept I believe will be a easy section अगर आप कंसिडर करें। उसमें से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपको पता होगा, आई एम श्योर उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, राइट? इट विल बी प्योरली एमसीक्यू बेस्ड। तो ये एडवांटेज है कि आपको पता है कि पता है या नहीं पता है, आपको क्लियर हो जाता है। तो अगर मेरे से आप समझें तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू स्टार्ट विथ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत सारे लोग अभी पढ़ भी रहे हैं, आपके लिए फ्रेश भी है। आपने 3 साल पढ़ा है, कुछ लोगों ने, कई लोगों ने तो बहुत डीप में भी पढ़ा है, कई लोगों ने कोर्सेज भी किए। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड स्टार्ट विद कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब आपके हिसाब से कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? पूरे के पूरे 20, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको केवल मार्क करना है, निकलना है, मार्क करना है, निकलना है। आपको पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो भी मार्क करके निकल जाना, जो भी आपको समझ में आता है। अब ये 20 क्वेश्चन में टाइम कितना देना है मुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वही अपन स्ट्रेटेजी लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन होगा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो आपको लेना है। 20 की 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड टाइम कितना देना है? आई वुड सजेस्ट कि इसमें 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि केवल रीड करना है, मार्क करना है, रीड करना है, मार्क करना है और निकल जाना है। क्लियर है ये चीज? तो 10 मिनट में आपने पूरा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिया। दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट। इसके बाद नंबर 2 पे आपको जो सेक्शन लेना चाहिए वो मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होना चाहिए, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। बट क्या इसमें मुझे सारे 30 क्वेश्चंस करना है? नो, यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल 30 क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट ईयर का सबसे डिफिकल्ट सेक्शन यही था। क्यों था ये सबसे डिफिकल्ट? क्योंकि जो रीजनिंग होता है हम उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और हम उसमें स्टक करते हैं, फंसते हैं। यहाँ डिफिकल्टी लेवल डिसाइड होता है टाइम कंजम्पशन से। इफ योर टाइम कंजम्पशन इज हाई तो डिफिकल्टी लेवल इज हाई, और वो डिपेंड करेगा 1% टू अनदर पर्सन। एक के लिए वो डिफिकल्ट, दूसरे के लिए वो इजी भी हो सकता है। पर लॉजिकल सेक्शन थोड़ा सर्टेन है आपके लिए इजी होता है। आई वुड रिकमेंड कि आप सेकेंड नंबर पे लॉजिकल रखिए। चूज अराउंड 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30, सिलेक्ट 20 क्वेश्चंस, और उस 20 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 20 मिनट्स डिवोट करने पड़े। 20 मिनट्स मिनिमम, 20 से 20 मिनट्स। तो ये जनरली वन लाइनर्स होंगे। जनरली मैं आपको बाइफोकेशन दूंगा अभी कि कौन कौन से रीजनिंग के टाइप आ सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग, इसको वर्बल बोला जाता है, वो रहे। यहाँ प्रॉब्लम क्या करेगा? एनालिटिकल वाले जो अरेंजमेंट्स हैं, जो पजल्स हैं, वो आपकी प्रॉब्लम करने वाले हैं। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? हम लास्ट के लिए रखेंगे, टाइम परमिट करेगा तो हम बाद के लिए लेके चले। करेक्ट? सो 20 क्वेश्चंस किए अपन ने सिलेक्ट करके। मैं ये बोल रहा हूं कि ये मॉक में स्ट्रेटेजी प्लान करके देखिए। और 20 बोला तो 20 नहीं, वो 21 और 19 हो सकता है, बेस्ड ऑन जैसा भी पेपर आ रहा है उसके बेसिस। बट टाइम कितना देना है शुरू में अपने को? 20 मिनट्स। इसके बाद आपका थर्ड सेक्शन होना चाहिए इंग्लिश। इसके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आई एम श्योर इंग्लिश में जो ग्रामर और वोकैबुलरी है उसमें टाइम नहीं लगेगा, बट आरसीज जो होंगे, पैसेजेस होंगे, उसमें टाइम लगेगा। इसमें भी आपको लगभग 20 मिनट देना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट अपने पास अब हो चुके हैं कितने क्वेश्चंस, कितना टाइम हो चुका है? लगभग 50 मिनट्स हमने दे दिया है। और मैंने इंटेंशनली आपका मैथ्स का सेक्शन लास्ट में रखा है। उसका भी मैं रीजन आपको समझा देता हूं। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जो आपको अटेंटिव रखेगा, बहुत हद तक फ्रेश रखेगा माइंड। दूसरी चीज, मैथ्स में टाइम बहुत ज्यादा लगता है।
तो टाइम लगने का मतलब है कि आपको बहुत स्मार्टली चूज करना है। अगर गलती से मैथ्स आपने शुरू किया तो वो पेपर खराब कर देगा। पेपर खराब कर देगा मतलब हो सकता है कि आप कुछ एक क्वेश्चनों में अटक जाओ और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके कुछ क्वेश्चन को के कई टाइम को खा जाए, उसमें कई टाइम आपका खत्म हो जाए, 10-10 मिनट 15-15 मिनट आप क्वेश्चन में फंस जाओ। आखिरी में रखने का एडवांटेज क्या है कि यू नो व्हाट आर द टाइम अवेलेबल टू बी एंड अकॉर्डिंगली मैं कर सकता। यही चीज अगर आप इंग्लिश को आखिरी में रखते या कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में रखते तो आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो होगा, क्योंकि जहां पढ़ना है वहां आपका माइंड क्या चाहिए, फ्रेश चाहिए, और जहां सॉल्व करना है वहां पे आपका डल माइंड में भी आप अटेंटिव हो सकते हैं। आप करके देखना मैथ्स को। इसलिए मैं कैट को बार बार रिफर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक मतलब स्ट्रक्चर्ड एग्जाम। कैट में क्वांट का सेक्शन नंबर 3 पे होता है। पहला सेक्शन इंग्लिश होता है, दूसरा सेक्शन रीजनिंग होता है और तीसरा सेक्शन, तो उन्होंने कुछ सोच के बनाया हो। सेक्शन क्यों होता है वहां पे, सेक्शनल टाइम लिमिट होती है। यहाँ सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, आपके हिसाब से आप मूव करोगे, बट सेक्शनल टाइम लिमिट के साथ साथ हमारे को ये भी समझना है कि हम स्ट्रेटेजिकली मूव करें। तो क्वांट आपका होना चाहिए 30 क्वेश्चन के लिए। अब मैं यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कितने अटेम्प्ट कर, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ आपको 30 मिनट्स देना है। टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 30, 20, 50, 20, 70 और ये 10, 80 मिनट्स हम अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब मेरे पास बचे हैं 10 मिनट्स। ये 10 मिनट में हमें ध्यान से देखना है कि यह क्या मैं मैथ्स में अच्छा कर पा रहा हूं या मैं रीजनिंग में अच्छा कर पा रहा हूं। ये जो 10 मिनट है इसमें से जो मैक्सिमम टाइम है आपको निकालना है और आइडेंटिफाई करना है। अगर आप रीजनिंग में ज्यादा अटेम्प्ट कर चुके हैं तो अब आप ट्राई करिए मैथ्स को कंटिन्यू करने का, और अगर आप मैथ्स में डिसेंट इनफ कंट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी तो रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कहां पर यूटिलाइज करना है अपने को, मैथ्स एंड रीजनिंग। ध्यान से समझिएगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉक में ये फॉलो करके देखो। मॉक तो मॉक ही है, नहीं वर्क किया तो आप स्ट्रेटेजी बदलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चैलेंज कर रहा हूं, बदले, बढ़ेगा आपका। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मॉक में आपका स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज हो जाने वाला। अभी मैथ्स में और उसमें कितने डिसेंट अटेम्प्ट होंगे वो अपन देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहा तो आपके पास 10 मिनट पूरे बचे हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा तो 5 मिनट बचे हैं, या 3-4 मिनट आखिरी के छोड़ देंगे अपन, तो 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट में अपन बूस्ट करने की कोशिश करें। पर ये बात भूलना मत, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर 5 मिनट पहले छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए मतलब अपने को रुकना है और सारे क्वेश्चंस को मार्क करना, ठीक है। अब आता है जो बचे हुए क्वेश्चन को अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या करना है। तो बचे हुए क्वेश्चंस के लिए स्ट्रेटेजी होती है, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, अब हो सकता है कि इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन छूट गए आपसे, मैथ्स में कुछ छूट गए, रीजनिंग में छूट गए, कंप्यूटर में भी कुछ छूट गए क्वेश्चन, सब में थोड़े बहुत छूटे हुए। ये यूनिवर्सली फैक्ट है और ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड भी है, और ये मतलब स्टैंडर्ड पैटर्न। 100 क्वेश्चन है, 25% क्वेश्चनों के आंसर होंगे ए, 25% के होंगे बी, 25% के सी और 25% के डी। एग्जैक्ट फिक्स नहीं होगा बट इसी के आसपास। इसका मतलब क्या है कि हमें जब तुक्का मारना है, जब उनको गैस वर्क करना है, तो हमें कोई एक ऑप्शन को पकड़ना है। तो सपोज आपके बचे हुए 20 क्वेश्चन हैं आखिरी में, आउट ऑफ 100 आपने 80 कर लिया, 70 कर लिया, और जो बचे हुए क्वेश्चन बचे हैं 20, कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपको पसंद आता है उस ऑप्शन को पिक करो और सब में एक लाइन से वही ऑप्शन मार्क करो, बी हो सी हो। जनरली बीच वाले 2 ऑप्शन रिकमेंडेड, ए और डी नहीं। आप मुझसे पूछेंगे तो बी और सी में जो भी अच्छा लगता हो मार्क करके आ जाना, सेम स्ट्रेटेजी वर्क करके देख। और ये मत देखना कि सर मॉक में मेरा बी वर्क कर रहा था तो मैं बीच करूंगा या सी वर्क कर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, वो तो पता ही नहीं है आपको कौन से क्वेश्चन छूटे। तो अगर आपका 20 क्वेश्चन छूटा है, ये बोला जाता है कि अगर आपने सेम ऑप्शन मार्क किया तो 1/4 मतलब 5 तो 100% आपको मिल गया, विदाउट एनी मेहनत 5 तो आएंगे। चाहे आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो 8-9 भी हो सकता, और बहुत ही खराब होगी वो चांसेस नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बट अगर आप तुक्का में सोच के तुक्का मार रहे हो ना, तो वो तुक्का नहीं है, वो गलत हो रहा है, फिर आप पूरे तुक्का नहीं मार पाए। एक बार बिल्कुल ध्यान में रख लो कि 5 मिनट अपन ने देख लिया। 5 मिनट क्यों बोल रहा हूँ कि हड़बड़ में गलती नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट में अगर टाइम बच भी गया
तो आप एक दो क्वेश्चन पढ़कर चेक करके दोबारा मार्क चेंज कर सकते हो, बट जो मेजर चंक है वो आखिरी के 5 मिनट में पहले आपका मार्कअप हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब ये जो स्ट्रेटेजी है, आपको ये स्ट्रेटेजी अपने मॉक के लिए अप्लाई करना है, ताकि ये आप एक वाकई में इसको डील करके देख सको कि भाई एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले ए था, बी था, ये सी हो गया, और आखिरी में ये डी सेक्शन हो गया हमारा। डी मतलब ये लास्ट का सेक्शन हो गया मैथ्स का और स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब हम जाएंगे, अब अपन डिस्कस करते हैं एग्जाम का जो सिलेबस है। एक एक करके मैं एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें टॉपिक में कैसे हमको करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ से ही। एक्चुअली आप अगर मैथ से शुरू करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मैथ्स 100% नहीं कर सकते। कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, आपको स्मार्टली उस मैथ्स के पेपर को वर्कआउट करना है। टोटल मिला के हमारे पास 30 क्वेश्चन। एट मैक्स अगर आपने जेन्युइनली भी किया, कितनी कोशिश कर लो, 15 से 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे सॉल्व करने की, और ये 15-16 में 30 मिनट से ज्यादा लगता है। जनरल अटेम्प्ट जो होते हैं 12, 13, 14 तक ही पहुंच पाओगे। अब जो पेपर होता है वो बाइफर्केटेड होता है इन 4-5 केसेस, 4-5 उसमें थ्योरीज में। नाउ मैं आपको एक बात क्लियर करूं, सबसे जो कॉमन वेटेज है वो है अरिथमेटिक। लगभग 30 में से आपको 5 से 8 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो अरिथमेटिक, मिनिमम 5 से 8 तक। ये सारा का सारा सेक्शन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना। इसमें टाइम भी लग सकता है, 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि आप ये भी मत सोचो कि एक लाइन के क्वेश्चन होंगे वो फटाफट हो जाए, नहीं। तो पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज पिक करना है सारे अरिथमेटिक। इसके बाद दूसरे नंबर में आई वुड हाईली रिकमेंड ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। इसके करीब करीब आपको 4 से 6 क्वेश्चन कम से कम मिलने वाले। 4 से 6 क्वेश्चन में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन केवल फॉर्मूला बेस्ड। तो ये सेक्शन का फंडामेंटल रूल है, सारे फॉर्मूलेज याद करो। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलेज लिख के रख लो। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले बेस्ड। अब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं गारंटी के साथ। अगर आपको सारे फॉर्मूलेज आते हैं तो आप वो फॉर्मूले बेस्ड दोनों क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ज्योमेट्री में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली हो, 1-2 क्वेश्चन कंफर्म है थोड़े से बियॉन्ड हो जाएंगे, आपको नहीं समझ आएंगे, बट 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सीधे डायरेक्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, उसमें क्या करना है अपने को, फॉर्मूले लग रहा है, ये कंपलसरी करना। आप यहां पर शायद पूरे क्वेश्चन ना कर पाए, बट तो भी 3 से 4 क्वेश्चन जो जनरली किस पे बेस्ड है, फॉर्मूले बेस्ड है, वो कर लेंगे। तीसरा नंबर, आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स में खासकर जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के होते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं यदि आपने प्रिपरेशन वैसे की है, अपने अंडरस्टैंडिंग वैसी रखी है। तो आप अगर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, आपको बहुत जल्दी क्लिक हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चंस भी ऑप्शन से पिक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 3 सेक्शंस को आपने ताकत से मेहनत किया तो ये आप आराम से 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 18-20 क्वेश्चन तक रीच कर गया। बचे हुए जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आप देखोगे अपन ने एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक, लीनियर, इंडाइसेस, ये लॉगरिथम, प्रोग्रेशन की जो सारा जो सेक्शंस है, इसको अपन ने ढंग से किया हुआ है। और जो कुछ है आगे आपके कुछ उसमें एडवांस सेशन का और इसमें एड ऑन होता चला जाए। पॉइंट ये है कि एलजेब्रा में ये जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये थोड़ा नहीं, मतलब ऐसा है कि बहुत स्टैटिक है, ये बहुत ही फिक्स है। इसको शुरू में मत पिक करना। आपको दिख गया एलजेब्रा का क्वेश्चन है, अपन उसको आखिरी में रखें, उसको अपन थोड़ा रोक के रखें। इसके बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 12th की मैथ्स पे बेस्ड हो। तो 12th की मैथ्स पे बेस्ड वाले क्वेश्चन, अगर वो टॉपिक आपका कंट्रोल्ड है, आप कर सकते हैं तो उसको करो, अदरवाइज उसको स्किप करो, इग्नोर करो। उसके 2-3 रीजंस मैं बताता हूं। इमोशनल नहीं होना है किसी भी एग्जाम्स में, ये याद रखो। 12th की मैथ्स के लिए उसने 4 मार्क्स नहीं दिए, हर एक के लिए कितने मार्क्स हैं,
जब 2 ही मार्क्स हैं तो मैं मेरे टाइम पे क्या देना है, मुझे कौन से क्वेश्चन को करना जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सॉल्व और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। और जो इतने वास्ट सिलेबस में, अभी 12th के मैथ्स में आपका इंटीग्रेशन डेरिवेशन भी होता है, इंडाइसिस भी होता है, और पता नहीं क्या वेक्टर और क्या क्या थ्योरम्स होते हैं। अगर आप वो करने ऑनेस्टली जाओगे तो आपकी सारी प्रिपरेशन, मतलब रेस्ट ऑफ द इंटायर प्रिपरेशन विल गो टू एन हेल, और उसमें जाने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपने अगर 15-16 क्वेश्चन सही कर लिए, 17-18 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए और 14-15 क्वेश्चन भी कर लिए ना, यू विल बी इन अमंग टॉपर्स। टॉपर्स की लिस्ट में जाओगे आपसे, क्योंकि मैथ्स में जनरल अटेम्प्ट जो होते हैं एवरेज 7-8 अटेम्प्ट ही होते हैं बच्चों, 7-8 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं। और उसमें भी जिन्होंने स्मार्टली उसको आखिरी में रखा, जिन्होंने पहले में रखा ना, वो पेपर खराब कर जाते हैं। मैथ्स मैथ्स अनडाउटेडली एक स्टैंडर्ड लेवल पे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको स्मार्टली डील करना है। टाइम के को देखते हुए देखना है, किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। मैंने क्या बोला, 30 मिनट देना है, 17-18 क्वेश्चन तक पहुंचना है, मतलब 2 मिनट का टाइम। अगर आपका किसी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, टेंटेटिव ऑप्शन उठाइए, मार्क करिए और निकल जाइए। टाइम बिल्कुल भी फंसना नहीं। अगर आपने किसी क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट दे दिया, तो ये बात मान के चलो कि अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है मॉक में प्रिपरेशन कर। तो मॉक में ये गलती करो तो अच्छी बात, तो समझ में भी आएगा कि ये टाइम। जब आप हमारा ऐप में एनालिसिस करोगे, उसमें टाइम मिलता है, हर क्वेश्चन में कितना टाइम दिया। एनालिसिस का मतलब मैं अभी आपको सिखाऊंगा, पर अभी भी बता देता हूं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मैं एक एक क्वेश्चन को चेक करूं कि मैंने इस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया। जिसको 2 सेकंड में किया मतलब तुक्का मारा, जिस क्वेश्चन को 5-7 मिनट 8 मिनट लगे, इसका मतलब मैं फंस गया था। फंसा हुआ मतलब ये मुझे नहीं फंसना, यही मुझे सीखना है मॉक से कि ये फंसना नहीं है, ये निकलना है मुझे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट एट मैक्स 3 मिनट तक होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई थिंक अरिथमेटिक नंबर 1, ज्योमेट्री नंबर 2, नंबर 3 मॉडर्न मैथ्स, और टाइम परमिट किया तो इनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। ये सबसे क्रूशियल है, क्योंकि एमसीए इज हाईली एक्सपेक्टिंग यू कि मैथ्स आपका कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद के जो सेक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअली प्रॉब्लम नहीं देने वाले हैं आपको, तो ये हमारे बूस्टर्स हैं। दूसरा जो सेक्शन होगा वो इंग्लिश है। इंग्लिश में जो केवल थोड़ा प्रॉब्लम करेगा वो ये सेक्शन, बट उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी आपका जो टाइम है उसमें बहुत सारे टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट, और मेनली टेस्ट दीजिए काय पे, आरसी से। आरसी के टेस्ट देने का एडवांटेज केवल वर्बल पे नहीं मिलेगा बच्चों। आरसी के टेस्ट देने का एडवांटेज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा आपके इंटायर पेपर में, क्योंकि पेपर में पढ़ना है ना। मैथ्स का क्वेश्चन भी 1 लाइनर नहीं होंगे। मैथ्स के क्वेश्चन में अरिथमेटिक आपको 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चन है। उसमें करना क्या है, पहले मैथ्स तो बाद में करना है, पहले तो पढ़ना है ना। इंग्लिश, रीजनिंग, सब में पढ़ना है, और फ्यूचर में जाके भी पढ़ना ही है आपको, आने वाले समय पे भी पढ़ना, मतलब रीड करते आना चाहिए, इसलिए रीडिंग इज मस्ट। आज से एक सजेशन है, डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली अलग अलग न्यूज। अगर मेरे से ऑनेस्टली आप पूछो, आपकी अगर रीडिंग स्पीड है तो आप कोई भी पेपर को क्रैक कर सकते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा प्रिपरेशन किया, मुझे मालूम है आपने प्रिपरेशन तो की है। मॉक में आप ज्यादा स्कोर क्यों नहीं कर पाओगे अभी, अगर आपने रीडिंग नहीं है कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो अटेम्प्ट बढ़ाने का एक ही तरीका है, रीडिंग। इसलिए आरसी के टेस्ट दो और 1 घंटा न्यूज़पेपर। ग्रामर इज अ स्कोरिंग सेक्शन। अगर आप मैडम के पूरे लेक्चर्स को समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, एमसीटी भी हुआ, बच्चों ने फीडबैक दिया, मोर और लेस उसी टाइप के क्वेश्चन आते, मोर और लेस। वो आपको फुल स्कोर देगा, या फिर 2-4 गलत भी हुए तो 1 आध 2-4 ही गलत नहीं, ज्यादातर उसमें दिक्कत नहीं होगी। वो कैब का कोई माई बाप नहीं, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। वो कैट एग्जाम हो, जीमेट एग्जाम हो, कोई सीईटी का एग्जाम हो, कुछ भी। पर अगर कॉन्टेक्चुअल वोकैब है, मतलब जो कहां पर आ रही है, आरसी में आ रही है, वो आपको सॉल्व कर। बट अगर जो कॉन्टेक्चुअल नहीं है, जो सीधा वर्ड का मीनिंग पूरी है, एंटोनेम सिनोनिम, उसमें जो समझ आता है मार्क करके निकल जाए। यहाँ 20 मार्क्स है, ये सेक्शन में दोबारा आना गलत होगा, इसलिए ये सेक्शन को इधर ही खत्म करेंगे। अगर 18 मिनट में आपके 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए
तो बचे हुए 2 मिनट में बचे हुए 5 क्वेश्चन को खत्म करो और निकल जाओ। इसमें दोबारा आने की जरूरत नहीं, या फिर एक आध दो छूट भी गया तो फिर वो अपने तुक्के में कैलकुलेट होता है। पर ये सेक्शन मुझे लगता है कि आप 20 की 20 कर डालो आराम से 20 मिनट। कितना टाइम? और मॉक दोगे ना तब ये टाइम मैनेजमेंट समझ आएगा। मैं 100 बार बोल लूं, 1000 बार बोल लूं, आप कुछ भी समझ लो, नहीं समझ आए मेरे बोलने से। आप गलती करोगे, 5 बार गलती करोगे तो 6वीं बार निकल जाओगे, बट पहली गलती अगर आप पेपर देने में कर रहे हो तो फिर आप सोचो दोबारा तो देना नहीं। इसलिए पहली गलती मॉक में करो, दूसरी गलती मॉक में करो, 5 गलती मॉक में करो, आप देखना 6वीं बार आप खुद ब खुद बराबर हो जाओ। रीजनिंग, तो भाई रीजनिंग एक्चुअली एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको स्मार्टली मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मैथ के जैसे। ये विन और लूज वाला सेक्शन है ये भी। आई हैव सीन इन माय करियर, खासकर सीईटी एग्जाम्स में, आई कैन टॉक अबाउट एमसीए, एमबीए, लॉ, जितनी भी सीईटीज मैंने देखा, खासकर सीईटी में पिछले 5 सालों में ये सेक्शन ने रुला दिया मुझे। 2 रीजंस। पहला रीजन ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये मुझे बनता था, नहीं आया, आप उस पर डिपेंडेंट। दूसरा, क्वेश्चनों का टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए। ये दोनों चीज से अपने को बचना है। मैंने क्यों नहीं बोला आपको कि रीजनिंग से शुरू करो, इसका रीजन ये, अगर आप रीजनिंग से शुरू करोगे फंस गए ना तो आपका पेपर वहीं खत्म। 90 मिनट बेटा कुछ होता ही नहीं है टाइम। आपको अभी लग रहा होगा कि 90 मिनट, अरे 90 मिनट ऐसे जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, टाइम ही नहीं पता चलेगा। आप शुरू का टाइम बड़ा कटेगा नहीं, वो इधर उधर मुंडी दिखाते रहोगे, जैसे ही वो टाइम चालू हुआ वो 90 मिनट ऐसे ऐसे चुटकी बजा के बजाए। तो ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग में फंसना नहीं है, स्टक नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ के रीजनिंग पे जाओगे, सबसे पहले ये करो। क्रिटिकल वाला जो सेक्शन होता है, आर्गुमेंट, अजम्पशन, ये जो मैडम ने करवाए हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ ना, श्वेता मैम का इतना अच्छा होल्ड है इस सब चीजों पे। उनके लेक्चर्स भी देख लिया ना आपने, उनके क्वेश्चंस भी कर लिया, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट का। ये वाला सेक्शन आर्गुमेंट, अजम्पशंस वाले जो क्रिटिकल के हैं, ये 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन ये पहले कर डालो। ये एक क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में, 1 मिनट के बीच में लगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम 2-3 मिनट में कर डालोगे। इसके बाद आई वुड रिकमेंड टू गो टू दिस। इसमें भी आपको देखना है कि इतने सारे वैरायटी है, आपकी किस्मत रही, आपका लक रहा, आपने ब्लड रिलेशन अच्छे से किया तो इसके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, या हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 3-4 आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का कोई सेट आ सकता है, ये पिक करो पहले। इसमें पहले कौन सा क्वेश्चंस करेंगे, यहां हमेशा याद रखो, 1 लाइनर से ही शुरू करना, इंडिविजुअल क्वेश्चन। ग्रुप क्वेश्चंस को पिक बिल्कुल मत करना पहले, नहीं तो बुरा फंस हो गया। अपन को क्या लालच आता है, सर मैं करूंगा तो 5 इकट्ठे सही होंगे, बिल्कुल सही है, बट अगर नहीं बनाना तो पूरा पेपर ढह जाएगा, आप फंस जाओगे पूरी तरीके। मॉक में करके देखना है, मॉक में सब करके देख, सारी स्ट्रेटेजीज अपना के देखिए। 10-10 मॉक रखे काय को है भाई, 10 है ना आपके पास, बोलोगे तो निम सीटी के मॉक भी खोल दूंगा मैं आपके लिए, वो भी करते बैठे। पर 10 मॉक का आपको पूरा यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर फॉर्म। कोडिंग डिकोडिंग वाले जो ये जो टॉपिक्स हैं, पहले 1 लाइनर पिक करो, इसके बाद अपन देखेंगे वो। इसके बाद अगर टाइम परमिट किया तो ये अरेंजमेंट पजल में जाना, अदरवाइज उसको बाद में रखें। नो नीड टू हैव इमोशंस। यहाँ 2 या 3 लीन आएंगे, 2 आएंगे मिनिमम, ये 10 मार्क का है, मतलब 2, 1 एंड 2। ये 2 में कंफर्म एक तो प्रॉब्लम वाला ही दिक्कत खड़ी करेगा आपके साथ, और एक जो होगा वो मैनेजेबल होगा, कितनी मेहनत किया। तो ये जो सेक्शन है, इसको अगर अपन ने तुक्के के लिए रखा तो ज्यादा बेटर। आप बताओ आपके चांसेस ज्यादा कहाँ है, ट्रेडिशनल लॉजिक्स में है या एनालिटिकल लॉजिक्स? जो ट्रेडिशनल वाले हैं उसमें आपके चांसेस ज्यादा, तो टाइम कहाँ डिवोट करें हम, ट्रेडिशनल रादर देन एनालिटिकल। क्लियर है ये बात? तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आपको, अगर आपने ये स्टक किया तो फंस जाओगे पूरी तरीके से इसमें से। ठीक है,
अब फाइनली कंप्यूटर का आता है। आई एम सो सॉरी, मैं कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जितना मैंने एनालिसिस किया समझ में आया, 4-5 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, उल्ट उट पटांग होंगे, बट 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेटर्स होंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये 20 की 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जो नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पढ़ना, नहीं समझ आया मार्क करना, निकल जो भी क्लोजेस्ट हो। जो नहीं समझ में आ रहा है एलिमिनेट करो। 4 ऑप्शंस, 3 एलिमिनेट हुए, एक रह गया। ठीक है, एक रह गया ऑटोमेटिकली, 2 एलिमिनेट हुए, बहुत अच्छी बात है, एक रह 2 भी होगा, अपन मार्क करके निकल जाए। यहाँ पे पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, और मैक्सिमम टाइम मैंने इसको 10 मिनट दिया है। हो जाएगा 10 मिनट में, हो ही जाएगा। 10 मिनट से कम में भी, टाइम में भी हो सकता। अब 10 से कम में हुआ तो वो 2-3 मिनट आगे बढ़ गए ना आपके, वो रीजनिंग को दे देना। बट ये अगर रीडिंग अच्छी किया है, टाइम नहीं लगे। कुछ सॉल्व करने का होता है क्या बताओ इसको? कोई कोड वोड तो दे ही नहीं सकते, वो कहां से चलाओगे कोड? सीधा सीधा वही जो होगा। और सोल्यूशन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी तो भी वो एक लिमिटेड वर्जन पे होंगी, ज्यादातर एमसीक्यूज ही होने वाले हैं। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरा जितना मानना है कि बहुत सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके बेसिक नॉलेज पे होंगे कंप्यूटर सिस्टम। और ज्यादातर, हाँ, बाइनरी, यस, मैं बोला ना, बाइनरी अरिथमेटिक में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कहाँ रखेंगे अपन? लास्ट। बाइनरी कन्वर्जन्स मैंने किया था ना एक सेशन बाइनरी। आप लोगों का नहीं होगा तो अपन इसमें एड ऑन कर लेंगे बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल में, डेसिमल में कन्वर्ट करना ना, वो मैं करवा दूंगा। याद रखना, वो अपन कर लेंगे। ऑनलाइन पे वो ऑलरेडी किया हुआ है। वो बहुत सिंपल सी चीज है, आप आधा पौन घंटे में क्लियरली आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं, मैं आपको सारे कन्वर्शन सिखा दूँ। तो अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बात के लिए रखो। अगर ये ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसके क्वेश्चन फिर स्किप कर देना, बाद में तुक्का मारने पे छोड़ें। बट आई एम श्योर बाइनरी अरिथमेटिक और जो कन्वर्शंस होंगे उसमें ज्यादा हाईवी वेटेज नहीं होगा, 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो 10 मिनट का अपन ने, तो इस तरीके से अपन ने बाइफोकेशन किया। अब मैं आपको कुछ फाइनली जो कुछ नंबर्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करता हूं। चारों सेक्शन का क्लियर हो गया आपका? मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूं कि आप फाइनल में भी यही अपना, ये आप पे ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप स्मार्ट बन जाओ इस बात को लेके कि जब मॉक बैठ रहे हो तो एक स्ट्रेटेजी हो। तो पहली स्ट्रेटेजी मेरी मानो, इसके बाद आपको डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कैसे वर्कआउट कर रही है, उस हिसाब से अपने मॉक में स्ट्रेटेजी बदलो। ऑनेस्टली आपकी प्रिपरेशन वहीं दिखेगी कि आपने कैसी स्ट्रेटेजी बनाई और उसको कितना फॉलो किया। 90% का एक्यूरेसी चाहिए अपने को स्ट्रेटेजी बनाना, तो आपका सॉल्व करने में भी 80-90% का एक्यूरेसी चला जाएगा, मैं बता। और कभी भी ध्यान रखो, एक्यूरेसी एब्सोल्युटली मैटर करता है, ऑल्दो ये भागने वाला एग्जाम। हाँ भाई, सो दिस शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ द एग्जाम। लास्ट ईयर देयर वर 25,000 अपीरेंट्स, कुछ 21,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। इस बार शुरुआत में 29,000 एप्लीकेशन थी, बट मार्च में जैसी डेडलाइन, मई में जैसी डेडलाइन बढ़ी, लुक एट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्लोज टू 40,000, 44,000 प्लस। ये एक अच्छी बात है बच्चों। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आप मान के चलिए कि ये एक ऐसा सर्टेन करियर बन रहा है जहां पर आप बहुत अच्छा अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने से वो बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं और पेपर बहुत हद तक एक ऐसा पेपर सेट किया जाता है जो नॉर्मल हो, यूनिफॉर्म। अगर वो 4-5 हजार बच्चे देने वाले होते ना, तो पेपर एक अलग लेवल का निकलता, दिक्कत होती। तो आपको ये अच्छा है, समझो, आपको इससे टेंशन नहीं लेना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। हमारा स्कोर हमारा टारगेट। आपका स्कोर आया तो पीछे ही रहने वाले बच्चे, चिंता मत करो। प्रिपरेशन करने वाले 44,000 में से मैं आपको बोल रहा हूँ मुश्किल से 8-10 हजार लोग, तो टारगेट आपका वो 8-10 हजार लोगों से लड़ाई लड़ना। ये रहा भाई कॉलेजेस आपके सामने। ये चिंता मत करो, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, ये पूरा पीपीटी भेज दूंगा। और ये यूट्यूब पे लाइव भी हो रहा है, आप इसको दोबारा देख सकते हो। ये यूट्यूब पे फ्री में चला गया है। आफ्टर दिस, 2 कॉलेजेस सबसे पॉपुलर है। पहला नंबर बीजेटीआई, पता है आपको? इट्स अ एनआईटी, इट्स इट्स अ बिगर एनआईटी देन वीएनआई।
एंड मोर पॉपुलर। VJTI के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो अच्छे बच्चे जो IIT पवई नहीं जा पाए वो कहाँ जाते हैं? VJTI, क्योंकि उनको मुंबई से छोड़ना नहीं। तो VJTI इज द रैंक 1 कॉलेज। लास्ट ईयर VJTI जो मिनिमम स्कोर था वो 79-80 पे आ गया था। दैट मीन्स आउट ऑफ 200 है, 80 मार्क्स के आसपास ही आ चुका है। तो अब आप खुद इमेजिन करिए, 80 मार्क्स मतलब सोच रहे हैं 40 सही क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मतलब अगर आपने 60 अटेम्प्ट किए, 50 सही हुए, आपका स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली 80 क्रॉस कर जाए। तो 100 में से एक्चुअली अटेम्प्ट करना कितने हैं मुझे एट लास्ट ईयर के हिसाब से? एट मैक्स 60। बट बिकॉज दिस ईयर कट ऑफ इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव मार्किंग इज नो मोर। आप 100 की 100 अटेम्प्ट करेंगे, उसमें भी हम जेन्युइन अटेम्प्ट कितने करेंगे? हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए 70। तो योर मेजर टारगेट शुड बी 70 क्वेश्चन आपको जेन्युइनली अटेम्प्ट करना है और 30 छोड़ देना है। किसके लिए? तुक्के के लिए। 70 में से अगर आपका एक्यूरेसी 80% है तो यू विल बी एक्चुअली करेक्ट। आपका जो करेक्ट क्वेश्चन होंगे वो 56 होंगे। 70% है तो आपका एक्यूरेसी अगर 70% है तो 49, मतलब 50 क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग इन अ वर्स्ट केसेस। 70 में से 50 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपका स्कोर होता है 50 into 100, 2 मतलब 100। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 20 गलत होने का प्रॉब्लम नहीं। और बचे हुए 30 में से आप 4-5 अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मेरा हिसाब से इस बार VJTI कम से कम 100 मार्क्स पे खुलेगा, 100 मार्क्स होना चाहिए। अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहा तो थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो कॉलेज बहुत ही पॉपुलर है वो ये है, क्या नाम है? सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी। ये दो कॉलेजेस मुझे MBA के दो कॉलेजेस की याद दिलाते, JBIMS एंड कुंभा। सेम ऐसे ही है, मुंबई और पुणे। ये दो बहुत ही रेप्यूटेटेड कॉलेजेस। इनका जो पैकेज है ना बच्चा, वो करीब करीब हाईएस्ट पैकेज 25 से 30 लाख तक भी गया है और एवरेज पैकेज 12-15 लाख है। आज से 2-3 साल बाद डेफिनेटली हायर एंड। इसके अलावा तीसरा जो रेप्यूटेटेड कॉलेज है वो है SPIT, सरदार पटेल। ये सेकंड बेस्ट कॉलेज है। जैसे हमारे यहाँ पे VNIT और रामदेव बाबा है, वैसे ये VNIT है और ये रामदेव है, सरदार पटेल इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। I had worked in Mumbai. I have seen people of Sardar Patel. Tremendous, superb college, superb engineering college. इंजीनियरिंग कॉलेज होने का एडवांटेज क्या है? प्लेसमेंट ऑटोमेटिक होने वाला है। अगर कोई कॉलेज में केवल MCA है और इंजीनियरिंग नहीं है, उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि प्लेसमेंट प्रॉब्लम। बट अगर इंजीनियरिंग के साथ MCA है तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि पूल ऑफ क्राउड ज्यादा हो। जो आप एप्टीट्यूड आज पढ़ रहे हैं ना, उसका इंपॉर्टेंस 2 साल बाद आपको सबसे ज्यादा रियलाइज होगा। MCA में जो कंपनीज होंगी, इंजीनियरिंग में जो कंपनीज होंगी, वो एप्टीट्यूड बेस्ड होती। तो मैं ज्यादा प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो फ्यूचर है। प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये लगभग टेंटेटिव कट ऑफ हमको चाहिए। VE मतलब ये विवेकानंद एजुकेशन, ये विकल्प एजुकेशन का क्लाइंट भी है। इनके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आई हैव सीन दैट कैंपस पर्सनली। बट इंजीनियरिंग इनका ट्रेमेंडस। जिनका इंजीनियरिंग अच्छा है उनका MBA भी अच्छा है। एक कॉलेज बहुत उठकर आया है वो ये, इनका जो TNP है, मिस्टर शीतल कुमार रावंडले, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर TNP अक्रॉस कंट्री। क्योंकि ये फेमस है बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने कैंपस में लाने। इसकी जो रैंक ऊपर उठ के गई है 7वें नंबर पे, इसीलिए प्लेसमेंट्स। SIS इज अ रियली गुड नेम, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। बाकी हमारे यहाँ पे रामदेव बाबा, अगर जिनको मुंबई, जिनको नागपुर से बाहर नहीं जाना है, उनके लिए सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल मिलता है बेटा, एब्सोल्युटली। लुक एट द स्कोर, 43 लास्ट ईयर। दैट मीन्स इस साल 60 पे आए। 60 का मतलब 30 क्वेश्चन सही। 100 में से 30 नहीं सही करेंगे क्या? सोचो जरा इस बात को।
इस बात पे ध्यान दीजिए, इस बात पे फोकस कीजिए कि अपना स्कोर पे अपने को जाना है कि स्कोर हमारा एक टारगेट होना चाहिए। मेरा यहां से आप लोगों का एक ही बात है, कोई भी यहाँ पे मेरे साथ जो पढ़ रहा है, किसी का भी स्कोर का टारगेट 200 में से 110 के नीचे होना नहीं चाहिए। आपका मिनिमम टारगेट 110 होना चाहिए, भले ही फिर आपके घर वाले अलाउ नहीं करें, रामदेव बाबा को नंबर 1 पे डाल देना, ले लेना रामदेव, चले, बट स्कोर का टारगेट कम से कम 110 होना चाहिए। मतलब मुझे 55 से 60 क्वेश्चन सही करना, 110 से नीचे हम टारगेट रखेंगे। आसान नहीं है, आई एम श्योर, बट इम्पॉसिबल भी नहीं। डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, स्ट्रेटेजिकली लेके जाना है। बाकी कॉलेजेस हम लोग सेपरेटली बात करेंगे कैप राउंड्स के लिए जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है यार, बहुत टायरिंग है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है आपको, थोड़ा सा होप, मतलब वो रखना है, पेशेंस रखना। ठीक है, मैं जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता। इंदिरा जो कॉलेज है वो एमसीए भर करवाता है, तो ये कॉलेजेस को थोड़ा लोअर लेवल पे रखना है। भारतीय विद्यापीठ इज वेरी फेमस फॉर देयर इंजीनियरिंग, बट इट्स अ ह्यूज यूनिवर्सिटी, तो प्रॉब्लम होता है वो सब चीजें में प्लेसमेंट में। अपना टारगेट बस ये यहां तक, पीसीओईसी पे, उसके नीचे के नहीं हुआ तो, और नागपुर वालों का टारगेट केवल, या फिर वो आरटीएम का जो नागपुर यूनिवर्सिटी का होता है वो, क्योंकि इसकी फीस कम है, फीस काफी कम है, रामदेव बाबा की फीस ज्यादा हो, हाँ 80, 85,000 से 1 लाख मान लो, और उसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी को 50%, SC ST को 0 फीस, केवल आपको क्या लगता है, कॉलेज की एडमिशन फीस लगती है, वो जो एग्जाम फीस होती है। आप लोग जो रिजर्वेशन वाले हैं वो मुझसे सेपरेटली बात करिएगा, हम अलग से डिस्कशन करेंगे, और कॉलेज के बाद का भी डिस्कशन करेंगे, वो अपन बाद में अपन चाहेंगे। अभी फिलहाल मेरा क्या बोला आपको, हमको प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचना है, हमको ये नहीं देखना कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिले, हमारा एक ही एम होना चाहिए, ओनली वन, दैट इज ओनली फोकस ऑन मार्क्स, कि मेरा मॉक में कितना मार्क्स आ रहा है। किसने मार्क्स दिया अभी तक, दिए, कितना स्कोर आया, वेरी गुड, तुम तो पहुंच जाओगे भैया 110 के 120 के ऊपर आराम से, इजी हो गया था पेपर। कंप्यूटर अपने मॉक्स में है बराबर, अरिथमेटिक वाले जो लॉजिक है वो सब, यही तो बेटा, यही प्रिपरेशन है, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे आपके मॉक्स में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 10 मॉक का एवरेज निकालना आखिरी दिन, और उसमें लगभग आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके आसपास आपका स्कोर आएगा एक्चुअली। बट वो कैलकुलेट मत करना, बाद में कैलकुलेट करना जब आपका रिजल्ट आए, क्योंकि जो मॉक्स होते हैं ना 10, उनके लास्ट के 10 मॉक्स, तो 10 मॉक्स जो आपके लास्ट के 5-7 मॉक्स होंगे, उनका एवरेज रियलाइज होगा। बाकी लोगों ने नहीं दिया मॉक, कितना आया, अकेले बैठ के दे रहे थे कि कैसे, ऑनेस्टली दिया, क्योंकि 5 मॉक्स आपके यहीं आके देना है आपको, 5 से 6 मॉक्स यहीं पे आपके मॉडरेटेड रहेंगे। ठीक है, 90 मिनट का बराबर आना है, 2 घंटे का स्लॉट लेके आओ। चलो, दिस इज योर प्रिपरेशन प्लान, माय रिकमेंडेशन। 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं अपन। हो गए एग्जाम्स या नहीं हो गए, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हो गए, तो क्या कर रहे हैं अपन, और कुछ है क्या ऑप्शन है, कोई जॉब करते हो, घर का कुछ काम करते, कुछ करते हो, नहीं करते हो, खाना वाना बनाते हो घर पे, है ना, तो ये सब कोई अभी 8 कितने दिन के लिए छोड़ना है भाई, 20 दिन बचे हुए ना, 25 दिन, आज क्या 10 तारीख है, 20 दिन मान के चलो, 4-5 दिन अपना इधर उधर जाएगा। इसके बाद ये 8-10 घंटे में क्या करना है, सबसे पहली चीज टॉपिक वाइज सारे टेस्ट दे डालो, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, जो हो चुके हैं उस टॉपिक का दोबारा आप उसका टेस्ट दे दो, या दोबारा उसको एनालिसिस कर लो, बाकी सबके 2-2 3-3 टेस्ट हो, एंड आई एम श्योर आपने सारे टेस्ट तो दिए नहीं होंगे अभी। ठीक है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक वाइज दे दो, दिन का टारगेट रखो, 3 से 4 टॉपिक वाइज टेस्ट, अलग अलग टॉपिक्स, किसी दिन रीजनिंग,
मैथ्स, इंग्लिश, ऐसे। एंड इंग्लिश में कभी आरसी, कभी ग्रामर, फिर कभी मैथ्स में भी कभी अरिथमेटिक, कभी ज्योमेट्री, कभी एल्जेब्रा, देते टेस्ट। प्लस सेक्शनल टेस्ट भी देना है, कंबाइंड मैथ्स, कंबाइंड रीजनिंग, कंबाइंड इंग्लिश। ठीक है, तो वो कुछ टेस्ट अभी आपके अपडेट होंगे और कुछ टेस्ट ऑलरेडी होंगे सेक्शनल टेस्ट के लिए। टेस्ट से क्या हो, टेस्ट से होगा आपको समझ आएगा। मैंने कितने इजीली बता दिया कि बेटा ये कर लेना, बेटा वो कर लेना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा बोलना आसान है, आपके करने के लिए उधर डिफिकल्ट होगा, पर तो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हर टॉपिक का आपको स्वॉट एनालिसिस करना है। आपने किया होगा ना, आपके कॉलेजेस में स्वॉट एनालिसिस आपका पर्सनल होता है। हर टॉपिक को आप डिवाइड करिए 4 फेजेस में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब जो मेरे कोर टॉपिक्स हैं, जो मुझे करना ही करना है, हर हालत में करना। वीकनेस, ऐसे टॉपिक्स जो मुझसे नहीं बनते। अब उसमें भी 2 प्रकार की कैटेगरीज होंगी, ऐसा जो फ्यूचर में जाके अपॉर्चुनिटी बनेंगे, या ऐसे जो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, वो थ्रेट पे चले जाएंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी बनने लायक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ाई, मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है आपका वीकनेस दिख रहा हो, बट वो अपॉर्चुनिटी बनेगा आपको। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। वो फॉर्मूले है कितने, मुझे आपने तो पढ़े ही हैं, बचपन में भी पढ़े हुए, तो ऐसा भी कोई नहीं कि रॉकेट साइंस है। तो वो वीकनेस एरिया को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते। और फाइनली कुछ थ्रेट सेक्शंस जो आपको कंप्लीटली इग्नोर करना। ये पता कैसे चलेगा? ये टेस्ट दे दे के पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरे को बनता ही नहीं, ये टॉपिक मेरे को आता है, ये टॉपिक ऐसे करता है। जैसे ही आपका स्वॉट एनालिसिस हो जा रहा है, आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मॉक टेस्ट आपके 1-2 जो भी हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपको जाके पहले अपना एक स्वॉट कर लेना है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा एरिया मेरा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो एरियाज मुझे बिल्कुल नहीं बनते हैं, जो मुझे इग्नोर करना है। वो क्वेश्चंस कहाँ जाएंगे? हमारा पेपर हमने कैसे डिवाइड किया है बेटा? 70-30 में डिवाइड किया। 70 क्या है? अटेम्प्ट। 30 क्या है? जो हमको गैस स्वैप कर, तुक्के मान। तो वो 30 पे कौन होने चाहिए? ये थ्रेड्स जो बिल्कुल भी आपकी स्ट्रेंथ बनी नहीं पा रहे हैं, जो बिल्कुल वीकनेस ही रह जाता है, वो आपके 30 पे जाने चाहिए, ताकि नुकसान कुछ नहीं हो। आप सही हुआ तो लकी, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। 70 क्वेश्चन जो हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ वाले होने चाहिए या अपॉर्चुनिटीज वाले होने चाहिए। और वो मॉक में आपको पूरा प्रैक्टिस करके रखना है। नाउ सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, 10 आप मेरे मॉक कर लो, और वो 10 मॉक का ईमानदारी से एनालिसिस कर। एनालिसिस समझ में आया कैसे होता है? एक मॉक आप दोगे ना 1.5 घंटे का, तो 5 घंटा लगता है एनालिसिस करने। कम से कम 4 से 5 गुना टाइम ज्यादा। क्यों मालूम है? एनालिसिस का मतलब होता है एक एक क्वेश्चन को डीप में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उसमें से हम पता कर रहे हैं कि कौन सा एरिया बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है तो उसको कैसे अपन इंप्रूव कर सकते। टाइम देख रहे हैं कि किसमें कितना टाइम लगा, उस क्वेश्चन को मैं को करना चाहिए आगे कि नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होगा। अब ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आया, अपन ने मार्क किया, गलत हो गया, अपन को क्या करना? अरे ये वाले कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेनेशन देना। उसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं मिला तो अपन अपनी कॉपी में देखे, नोटबुक में देखे, यूट्यूब पे देखे, जहां भी दिख रहा है। एनालिसिस अगर नहीं किया ना, आपने 2 मॉक्स अगर दिए हैं सभी ने, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो वो मॉक आपके लिए वेस्ट है। तो अभी क्या करो? 2 मॉक्स का एनालिसिस करो, केवल एनालिसिस। 2-3 दिन बाद के बाद अपना जो डेट आएगा उसको मॉक्स। तो एनालिसिस इज एब्सोल्युटली की। जितना इंपॉर्टेंट मॉक देना है, उतना ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना है। और अगर आप ये फॉलो करते हैं, आई एम अश्योरिंग यू कि अपना जो टारगेट है 110 120 विल बी वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू कैन मैनेज टू गेट। ठीक है? सो ये मेरा प्रिपरेशन आपको प्लान दिया मैंने, आपको कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज फॉर मॉक जो आपको याद रखनी है। टाइम जो हमने बाउंडेशन रखा है उसको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। 20 मिनट पहले सेक्शन के लिए, 10-12 मिनट तो 10-12, दूसरे में 20 मिनट तो 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे। ये किसी भी हालत में आपका नहीं बदलना चाहिए, किसी भी हालत। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन सेक्शन वाइज है पेपर, तो हमेशा याद रखिए स्कैन करना बहुत जरूरी है।
हम क्या करते हैं, जैसे क्रिकेट में पिच का मुआयना होता है कि भाई बैटिंग लेना कि बॉलिंग लेना, ये देखते हैं कि कितना स्कोर बनाएंगे तो पर वो सेम चीज स्कैनिंग को, सेक्शन को एनालाइज कर, किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन कम है, और अकॉर्डिंगली आपको उस सेक्शन का टाइमिंग प्लान करना है, या अकॉर्डिंगली उस सेक्शन के बाद अपने पास जाना है। जगल नहीं करने का बात तब आएगा जब ये सेक्शन वाइज होगा। तो अगर सेक्शन वाइज हुआ तो जगल मत कर, मतलब जब क्वांट कर रहे हो तो क्वांटिच करते रहे, ये मत करना कि एक क्वेश्चन इंग्लिश का एक क्वेश्चन रीजनिंग। बट अगर क्वेश्चन पेपर ही वैसा है तब तो हमारे पास ऑप्शन नहीं, बट तो भी मैं रिकमेंड क्या करूंगा, टाइम मैनेजमेंट वैसे ही रखिए, पहले कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ही करते रहे, एक एक करके जाओगे, इससे एक डिसएडवांटेज होगा, आपका थोड़ा टाइम बढ़ जाए, बट आपका जो मेंटेलिटी है ना वो फिक्स रहेगा, फ्लोटेड नहीं रहेगा। फ्लोटेड मतलब एक क्वेश्चन मैथ्स का करोगे, दूसरा कंप्यूटर का, तीसरा रीजनिंग का, आप स्टेबल रहोगे ही नहीं, अनस्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तो पूरे मैथ्स के पहले करो, पूरे रीजनिंग के करो, एक्यूरेसी स्पीड दोनों बराबर मेंटेन करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। 100% मार्क करना है, सेक्शन वाइज इन डेप्थ एनालिसिस करिए मॉक का, वीक एरियाज को स्टार्ट करिए, ऐसे वीक एरिया जो इंप्रूव हो सकते हैं उनको इंप्रूव करो, जो नहीं हो सकते उनको छोड़ दो। और कभी भी याद रखिए कि भाई स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज में हमेशा रिशफलिंग होती रहती है, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। कई बार होता है कोई टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है और वो नहीं बना, और कई बार ये भी होगा कि जो वीक है वो बन गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी जो इतने सालों की मेहनत है वो ऐसे चले जाती है, नहीं, जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। कभी कभी वो होता है कुछ क्वेश्चनों। ठीक है, ये कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज है मेरे से। ये डूज एंड डोंट्स हैं, ये आप ध्यान रखिए। मॉक प्रैक्टिस करना है, लैपटॉप में ही देना है, मोबाइल पे मत दो। अगर लैपटॉप नहीं है तो कम से कम 5 मॉक के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा किसी से हायर कर। ठीक है, लैपटॉप में आप दे सकते हो, आपको पता है मॉक सब उसमें मैसेजेस हैं, मैं सर को बोल दूंगा, वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे। आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी दे सकते, सेम मॉक दिया आपने, देखा है? देख, ऐप का उसका एक लिंक आता है, वो मैं आपको फॉरवर्ड करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ। और अभी नहीं आया तो मुझे एक मैसेज कर देना, मैं बोल दूंगा तुरंत आ जाए। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज, एक लिंक होती है। प्रैक्टिस से ज्यादा बड़ा कुछ और चीज नहीं है, सारे क्वेश्चंस तक पहुंचना है, ये अल्टीमेट स्ट्रेटेजीज है भाई, आप ध्यान रखिए। वही जीतेगा, वही सक्सेसफुल होगा जिसने 100 क्वेश्चन पढ़े। अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हो, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में कहीं तो प्रॉब्लम। सॉल्व नहीं किए, 70 किए उसमें से, वो बात अलग है, 100 पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट, मतलब रीच कर रहे हैं। मैथ्स में अपन 10 ही क्वेश्चन पहुंच पाए सर, 20 तो आखिरी के देखे नहीं, ये गलत, फंस गए आप कहीं। डोंट्स में ये ध्यान रखो, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, दो बहुत सारे सोर्सेस। गूगल से प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं कि गूगल को बहुत, अरे भाई आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया जहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है, जब नहीं मिलता होता तो बात अलग थी। यहाँ आपको सब दिया जा रहा है, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, तो बहुत ज्यादा मटेरियल को मत इस्तेमाल करो यार। अब थोड़ा बहुत गूगल पे देखा ठीक है, बट उसी पे डिपेंडेंट होगा कि मैं ये मटेरियल करता हूँ, कोई एक आध क्वेश्चन किसी का अच्छा था, हमारा अच्छा नहीं था, तो आप बोलने लगे कि भाई ये ऐसा नहीं होता है। हम भी इतने सालों से, वो भी इतने सालों से, अभी आप एक चीज पे स्टिक रहिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ और आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चार पांच क्वेश्चन इधर उधर होंगे, कुछ नए क्वेश्चन आ गए तो चिंता मत करो, आपको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बस 100 में से। ठीक है, 100 में से 70 अटेम्प्ट करना, ये भूलना मत। तो दो चार पांच में इधर उधर हुआ, चिंता मत करना भाई। अपने मॉक के रिजल्ट दूसरों से कंपेयर मत करो, टोटली डिपेंड करता है उस दिन पे। ठीक है, और मिस्टेक्स को समझो, वो एनालिसिस से समझ में आए, और उसको रिपीट नहीं करना। कॉर्पोरेट में एक बात बोली जाती है, और जो आपको अपने लाइफ में भी इस्तेमाल कर, मेकिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ प्रॉब्लम, रिपीटिंग अ मिस्टेक इज अ क्राइम। समझ रहे हो आप सीखते नहीं हो अपने आप से। और आज जो बड़ी स्किल्स में से एक स्किल्स ये भी है, आप रिपीट कर रहे हो क्या मिस्टेक्स, मतलब रिपीट कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हो, चीजों को सीरियसली, वो मिस्टेक दोबारा नहीं दोहराना, ये कसम खा लो। और ये आपकी बाकी लाइफ के लिए। और बच्चों कैसा है कि हम कितना ही कंटेंट दे दें, कितने ही सेशंस करा दें,
ये जो आपके सामने स्लाइड में है ये बात भूलो मत। 8 घंटा डेली का पढ़ो। सोचो जरा VJTI हो गया ना बेटा ये, या सावित्री बाई हो गया, या STIT भी हो गया ना, आप सोच नहीं सकते आपका फ्यूचर कितना ब्रॉड होने वाला है। VJTI में बच्चे, इंजीनियरिंग के टॉप मोस्ट बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले में बड़े बड़े मतलब अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो टॉप मोस्ट स्कॉलर होते हैं JEE। तो हमें अगर हमारा टारगेट वहां प्लान किया, प्लेसमेंट तो बहुत छोटी बात है बेटा, आप इतना फंडामेंटली बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, सो कोई लिमिट नहीं। ये क्रैश कोर्स है अपना, जो अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है आपका। खासकर ये जो लास्ट के जो हमारे सेशन हमने कमिट किए थे, आपको पता है कि ये महीने ही प्लान कर रहे थे हम, बट वो एग्जाम का डेट लास्ट मिनट पे चला गया। अब ये आपका फिर से शुरू होगा। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, अपने जो जो स्टूडेंट्स नहीं है आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, या तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, या तो सेल्फ प्रिपरेटरी मॉडल ले लीजिए। इसमें केवल टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है, 2000 रुपए में 19,999 में ये टेस्ट सीरीज भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो ये जो भी कंसिडरेशंस हैं आप देख लो, अपने फ्रेंड्स को रिफर कर सकते हो, ये हम आपको ग्रुप में भी डाल देंगे। एंड फाइनली, एनी क्वेश्चंस, कोई आपके क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, यू कैन टेल मी। आई होप आपको क्लियर हुआ कैसे करना है, क्या करना है, समझ आया। अच्छा होता कि बाकी लोग भी आते हैं ना, चलो तो था। ऐसा ही कहीं नहीं ज्वाइन किया बेटा आपने, 15-16 साल से अगर मैं करवा रहा हूँ तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा यहाँ से। और जो मेरी चीजों को अगर फॉलो करोगे, 70-80% भी फॉलो किया ना, तो जो स्कोर टारगेट कर रहे हो वो पहुंचेगा वहां। ऐसा नहीं है, इतने सालों से अगर मैंने किए हैं चीजें, तो अभी भी हम आपके लिए करके ही देंगे, कोई बात नहीं। बोलो, कुछ क्वेरीज है ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन में जो भी है बताइए। हाँ सर, जो कॉलेजेस में इंटरनली प्रमोट करते हैं, मतलब लास्ट टाइम मैंने पुणे में ट्राई किया था BCA के स्टार्टिंग के वक्त। फिर वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस लाइक मॉडर्न कॉलेज और SPPU भी इंटरनली सीट्स दे रहे थे उनको, मतलब जिन लोगों ने वहीं से BCA किया वो उनको प्रमोट कर रहे थे बेटा वो विदाउट कोटा एडमिशन। रहता है ना, कोटा रहता है। हाँ, ठीक है, मैं हर तो कॉलेज में एक्चुअल कोटा, सीट्स वगैरह कितने अवेलेबल रहते हैं अपने को? वो मैं थोड़ा सा और डिटेल बाइफर्केशन दूंगा। मेरे ख्याल से वो अभी फिलहाल अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब कैप राउंड्स बढ़ेंगे अपन तब उसमें इंपॉर्टेंट आएगा, अभी वो मैटर नहीं है। ठीक है, ओके एक्चुअल सर। सीट्स वो बिल्कुल वेरी करती है, EWS के कोटा आने के बाद सीट्स बढ़ गई हैं, और वो डिपेंड करेगा। मैं अभी फिलहाल वो क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन।